इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव मुद्दा ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाला लगता है कि ओनली फीमेल्स आर द पार्ट ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेक्स रैकेट चलते हैं और ड्रग्स दिए जाते हैं और प्रोस्टिट्यूशंस होती हैं नो not only the females are the one who is suffering in human trafficking male are also the one who are suffering the most. तो डॉग्स को लेके ना एक बिजनेस बना, आपको ट्रेड कॉल वगैरह कुछ मिला? मेरे लिए सब चीजें मैटर नहीं करती. इफ आई एम फाइटिंग फॉर समथिंग इन डिवोर्स केस द 50% शेयर रूल, अब कोई वुमेन चाहे मुझे तो पूरी पूरी सैलरी चाहिए तो ऐसे नहीं हो सकता. 50% सैलरी चाहिए नहीं हो सकता. और फाइनेंशियल बेनिफिट्स के लिए भी बहुत बोला गया. जेब से 100 रुपए का नोट निकाला, मेरे हाथ पे रखा, सर पे हाथ रख के उन्होंने बोला बेटा चीज खा लेना. तुमने आज जो किया. एक सीआरपीएफ के पर्सन है, वो नागालैंड से है. ही वांटेड टू this is a psychological problem. True. See, in our field, we call it a landmark case. And said this word right now, I had a goosebumps. क्योंकि जो अभी तक हुआ नहीं था, हुआ है उसको कहते हैं लैंडमार्क. सेल्फ डिफेंस अपने बच्चे को सबसे पहले स्कूल में सिखाना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में. मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल तो कुर्सी का ही है. 1 से 5 साल तक की सजा में उनको कितनी सजा देनी है वो डिस्क्रिशन होती है जज, डिपेंडिंग अपॉन द ग्रीवियंसेस ऑफ द फैक्ट्स. Welcome to LOL Let's Off Leash. This is another episode of Let's Off Leash. I'm your host Kasturi Jha, and I'm thrilled to have you join us today. Today we have a very special guest. I have an entire list for her. Advocate Rhythm Sheel Srivastav. You must be knowing Coco's advocate. Yeah. Rhythm is not just a Supreme Court lawyer. She also a certified anti-human trafficking expert, a passionate Himalayan rider, and lone rumbler. I do not know what is lone rumbler. Let's ask her only. Recently, she made headlines by securing a landmark victory in a case where the accused received a 1-year punishment for throwing acid on a dog. A groundbreaking step forward for animal rights in India. We are honored to have her on this show. Hello, welcome to LOL Let's Off Leash. Advocate Rhythm Sheel Srivastav. तारीख पे तारीख. आज तो ये तारीख हमें मिल ही गई. How true that was, no, Kasturi? Yeah. So Rhythm कैसे है आप? I'm good. Thank you so much, Kasturi. How are you today? I'm good, and finally we freeze our date. Yeah. So justice accepted. Undoubtedly. So the profession you are in is very interesting, because what we see from the courtroom, the black ladies and the male and the female are all coming, the Filmfare award wali feeling and all. Either we see it on Jolly LLB और ब्रेकिंग द डॉन जो अभी सारे आते हैं तो उसी में हम लोग देखते हैं. बट मेरे पास कुछ बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं जो आज के जमाने में तो बहुत ज्यादा, मतलब जनरेशन अल्फा और जेन जी सबको जानना होगा कि थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी है. दैट इन डिवोर्स केस there are a lot of them, like debate चल रही है about the fairness of alimony and the 50% shares rule. So what's your perspective in this issue? What do you think? See, I already had a podcast on this with somebody else as well. Okay. उसपे मैंने comments पढ़े. It was only for alimony. और मैंने कमेंट्स पढ़े एंड मुझे एक्चुअली पढ़ के ना लोगों पे हंसी नहीं आई, गुस्सा नहीं आया, बट I felt like there is something lack of knowledge to the people which is given from our field only. Yeah, maybe this is the business. Exactly. नहीं, business नहीं बोलूंगी. देखो, I'm into this field, I know. ये बिजनेस की तरह नहीं है, बट जैसे मान लो एक केस है मेरे पास ही, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक केस है, अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 years हो चुके हैं उस केस को. मैट्रिमोनियल मैटर है. और मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ही जब ये केस मेरे पास लास्ट ईयर आया था तो ये राइज हुआ कि इतने साल लगे क्यों? क्योंकि पार्टीज को लॉ की नॉलेज नहीं है. हमें तो कोर्ट डेट पे डेट कभी नहीं देती. वो इसलिए देती है क्योंकि either of the party is lacking to either produce some document, either the party is not available, either the party the council is not available, either कोई पार्टी कहता है अरे डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ होगी मैं नेक्स्ट डेट पे सप्लाई कर दूंगा लॉर्डशिप. तो
इंटेंशनली कुछ नहीं होता, बट अगर हम अपना होमवर्क कंप्लीट करके जाते हैं Yes. तो आई डोंट थिंक सो कि किसी केस में इतना ज्यादा वक्त लगना चाहिए. कमिंग टू योर क्वेश्चन, बैक टू योर क्वेश्चन, एलिमनी वाला जैसे मैंने बोला कि पॉडकास्ट मैंने किया था, वहां लोगों के कमेंट्स पढ़े मेरे, इट वॉज सो हेडेड कमेंट्स, लोगों का अंदर से गुस्सा निकल रहा था मेरे ऊपर, बट मुझे बुरा नहीं लगा क्योंकि लोगों ने वो चीज फेस करी है, लोग फेस कर रहे हैं. अब ये तो हमारी पावर है ना कि हम उस चीज को कैसे हैंडल कर सकते हैं, हम अपनी पार्टी को कैसे कुछ दिलवा सकते हैं. अब जैसे एक हस्बैंड है, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसकी सैलरी का मैक्सिमम 33% विमेन को मिल सकता है, मैक्सिमम 33%. अब कोई वुमेन चाहे मुझे तो पूरी पूरी सैलरी चाहिए, तो ऐसे नहीं हो सकता. 50% सैलरी चाहिए, नहीं हो सकता भाई, एज पर लॉ जो है वही चलेगा. सो हमारा मार्केटिंग का कोई प्रोसेस नहीं होता, तो इट डिपेंड्स ऑन स्टेजेस ऑफ योर एडवोकेसी. इनिशियल स्टेज में जो भी जूनियर होते हैं, इंटर्न्स होते हैं, उनको बहुत ही कम, ना के बराबर या बिल्कुल ही नहीं मिलता है. ठीक है. मुझे जैसे अप्रोक्सीमेटली मैंने बताया कि 10 years हो गए हैं, तो आई हैव क्रिएटेड माई क्लाइंट्स बाय माई सेल्फ. मेरी एज में जितने होते हैं वो एक्सट्रीम हार्ड वर्किंग होते हैं, बिकॉज दे हैव टू डू समथिंग इन देयर लाइफ. कुछ पैशंस होते हैं, कुछ ड्रीम्स होते हैं. इफ वी आर इनटू द लिटिगेशन, हम लोग केसेस के थ्रू अर्न करते हैं, और हम ऐसा नहीं है कि हम बहुत, ये लोगों को मिथ है कि हम बहुत ज्यादा अर्न करते हैं, करते हैं. Well, the thing is, we come to the ground reality of the inner soul of a person. तो हमें पता होता है कौन इंसान दे सकता है, कौन इंसान नहीं दे सकता. देखो, जो है जिसके पास और जो पे ऑफ कर सकता है, we take a good fees. ठीक है. और वो भी कुछ ऐसी चीज नहीं होती जो लोगों का मिथ होता है कि लॉयर्स तो बहुत ही पैसा लेते हैं. We ask you to pay. It's your choice कि आपको उतने पे हमें देना है पेमेंट, कि आपको कहीं और लॉयर के पास जाना है. तो इट्स योर चॉइस. इफ यू आर पेइंग अस, आप अपनी मर्जी से पे कर रहे हो, राइट. ओके, मतलब ये कोई फिक्स्ड रेट या फिक्स सैलरी ऐसा कुछ भी नहीं है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. सैलरी तो देखो, हम लोग प्राइवेट लॉयर्स हैं, तो हमारी सैलरीज तो वैसे भी नहीं होती है. जो क्लाइंट्स हमारे बहुत अच्छे होते हैं, वी टेक अ गुड फीस क्योंकि वो पे कर सकते हैं. जो क्लाइंट्स मिडिल लेवल के होते हैं, उनके साथ हम इंस्टॉलमेंट्स और ईएमआई पे भी फी अपनी लेते हैं कि कोई बात नहीं, चलो अभी दे देना, फिर थोड़ा बाद में दे देना, थोड़ा बाद में दे, कोई बात नहीं, वी अंडरस्टैंड. जो बिल्कुल ही नहीं दे सकते हैं, कितने केसेस तो हम प्रो बोनो उनके फ्री ऑफ कॉस्ट भी लड़ते हैं. तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किससे किस हिसाब से चार्ज करते हैं. आई डोंट नो एनीबडी एल्स, मैं इस फील्ड में हूँ, मुझे मेरा पता है. या बाकी जो सीनियर्स हैं वो तो जानते ही हैं कि उनको कितने साल हो गए एक्सपीरियंस के. देयर ग्रे हेयर इज अ बिगेस्ट रीजन कि वो सबसे ज्यादा अर्न कर रहे हैं. बट नॉट, अगेन आई एम सेइंग, नॉट एवरी सीनियर लॉयर. जो बहुत बुजुर्ग भी हैं, हमने देखे हैं कमिंग ऑन द व्हील चेयर, और उनके पास उतने केसेस नहीं होते हैं. विद सम मिथ. ठीक है. आप डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हो और अपनी क्लाइंटेज बढ़ाते हो, अपनी सोशल नेटवर्क क्रिएट करते हो, आपका काम आपके सोशल नेटवर्क को कितना ग्रोथ दे रहा है, उस बेसिस पे हमारी इनकम डिसाइड होती है, जो हम खुद डिसाइड नहीं कर पाते बेसिकली कितनी है. क्योंकि देखो, आप इंटायर कोविड का ड्यूरेशन अगर देखोगे, कोर्ट्स वर क्लोज्ड. ठीक है. तो उस टाइम पे लॉयर्स, हमारे फील्ड के बहुत लॉयर्स ने भी सुसाइड अटेम्प्ट करे थे क्योंकि दे वर अनएबल टू रन देयर फैमिलीज. तो ये ऐसा नहीं है कि पीपल इन दिस प्रोफेशन अर्न वेरी गुड. आप इनिशियल ग्राउंड रियलिटी पे आके देखोगे, जो स्टेप इन करता है उसके लिए तो सबसे टफेस्ट ड्यूरेशन होता है एडवोकेसी का. जो टिक गया वो टिक गया, जो नहीं टिक पाता, इधर दे मूव टू कॉर्पोरेट, क्योंकि वहां फिक्स सैलरीज मिलती हैं, वो जॉब है तो लीगल की ही, बट या तो आप कोर्ट में रहते हो या कंपनी में जाते हो. तो जो हिम्मत हार जाते हैं, या फिर उनको सैलरी चाहिए, या फिर कुछ बर्डन्स हैं जो उनको पे ऑफ करने हैं, दे चूज टू ऑप्ट कॉर्पोरेट आफ्टर. दिस इज एक्चुअली अ डीप एंड कोर नॉलेज जो बहुतों को नहीं पता होगा. उनको हमेशा ऐसा लगता होगा कि लॉयर का जॉब और काइंड ऑफ अ फिक्स सैलरी, हैंडसम अमाउंट. तो आप मुझे, एज हम ये बात कर ही रहे टू द डीप, आप मुझे ये एनालाइज करो कि जैसे आप अपने नाम के आगे एडवोकेट ADV लगाते हो, वैसे ये सारे टाइटल्स आता कैसे? मतलब हाउ डज दे गेट दिस टाइटल? लाइक एडवोकेट हो गया या बैरिस्टर हो गया, या जो ये आप लोगों में जो आती है स्टेज. बैरिस्टर होता है, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया. हमारे यहाँ पे एडवोकेट ही लगता है. इधर यू, जैसे आपने अभी बहुत बारी कॉल किया लॉयर और एडवोकेट, है ना. दीज टू डिफरेंट टर्म्स व्हिच इज यूज्ड इन इंडिया. लॉयर वो जिसने लॉ पढ़ी है, बट
he is not into practice, उसको आप Okay. lawyer बोलते हो. The person who has a law degree is a lawyer. With a person who has a law degree and is into the field of litigation, जो practice कर रहा है, जो काम कर रहा है इसका, he becomes an advocate after giving the exam for All India Bar. Okay. आपको पूरी पढ़ाई करने के बाद ऑल इंडिया बार का एक एग्जाम देने पड़ता है. आफ्टर क्वालिफाइंग दैट एग्जाम यू बिकम एन एडवोकेट फ्रॉम अ लॉयर. लॉयर तो हर इंसान है जो लॉ पढ़ लेता है, बट नॉट एवरीबडी इज एन एडवोकेट. ये बहुत इंटरेस्टिंग एक बहुत क्वेश्चन था. आपने ऋचा शर्मा मेरे मैम का नाम लिए थे जिन्होंने कोकोका केस में जजमेंट दिया है. उस टाइम से मेरे दिमाग में क्वेश्चन सडनली चल रहा था कि judges hold significant power in the courtroom, right? So how does this power influence the outcome of case? Like, what's the role of judicial districts like should play delivering justice? कोई होता है ऐसे इम्पैक्ट? मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल तो उस कुर्सी का ही है, क्योंकि वो अनबायस्ड है, राइट? दोनों तरह के मुद्दे उनके सामने हैं. दे आर द मोस्ट नॉलेजेबल पर्सन सिटिंग ओवर देयर, जिनको सिर्फ किताबों में जो लिखा गया है, जो लॉज हैं, जो एक दायरा है कि आप इतने, जैसे एक पर्टिकुलर सेक्शन है, उस सेक्शन में इतने से इतनी ही सजा होनी चाहिए. अब वो 1 से 5 साल तक की सजा में उनको कितनी सजा देनी है वो डिस्क्रिशन होती है जज की, डिपेंडिंग अपॉन द ग्रीवियंसेस ऑफ द फैक्ट्स. ठीक है, कितना ग्रेविटी है, कितनी उसमें सीरियसनेस है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट देने की पावर. हाँ, जैसे हमारे पास MM होते हैं, ASJ, ADJ, ऐसे अथॉरिटीज भी बढ़ती जाती हैं, जजेस की लेवल्स बढ़ते हैं, उनके पास पावर्स भी बढ़ती हैं. आफ्टर दैट देयर इज अ हाई कोर्ट, आफ्टर दैट देयर इज अ सुप्रीम कोर्ट, न्यूमरस जजेस हैं. तो हर जज के लेवल के हिसाब से हर जज के पावर डिफाइन होती है. कभी एग्जैक्टली इट्स अ हायरार्की. छोटे से शुरू होता है कि इतनी सजा देने की पावर सिर्फ इसमें है, इससे ज्यादा वो दे ही नहीं सकते. तो ऐसे स्टार्ट होती है हायरार्की. तो इसी वजह से इन्फ्लुएंस होता है, लोगों पे आता है, इम्पैक्ट पड़ता है, डिपेंडिंग अपॉन द केस कि केस क्या है, किसके पास फाइल होना चाहिए, उस हिसाब से डिपेंड करता है कि वो जज कितनी सजा सुना सकते हैं बेसिकली. तो अभी आपने मैंने आपकी पूरा जब प्रोफाइल देखा, पूरा रिसर्च किया, तो यू आर इनटू द ह्यूमन ट्रैफिकिंग आल्सो. यस. व्हाट आर ऑल लाइक, क्या बोलते हैं उसको, 10 भुजाएं, और क्या क्या आप हैंडल करते हैं like human trafficking? Or I am certified in human trafficking, anti-human trafficking, and along with that I handle civil matters, criminal matters है मेरे पास में, matrimonial disputes है मेरे पास में. अब इनकी bifurcation इतनी ज्यादा हो जाती है, जैसे मैट्रिमोनियल में बहुत तरह के मैटर्स होते हैं, सिविल में प्रॉपर्टी रिलेटेड हो गए, सर्विस मैटर्स हो गए, DRT मैटर्स हो गए, क्रिमिनल में NDPS, बेल्स, हर तरह की, रेप मैटर्स हो गए, मर्डर्स हो गए. तो इट्स वास्ट, मतलब लॉ बहुत वास्ट है. तो मेरे पास इस तरह के सारे मैं ये कवर करती हूँ. ऑलमोस्ट सारा मेन रीजन्स आपने देख रखा. कोई ऐसा एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहोगे या जो यू विल रिमेम्बर एंटायर लाइफ, कोको को छोड़ के? लाइक कोको तो अभी रिसेंट हुआ, दैट वो मैं भी नहीं भूल सकती, बट बिफोर दिस मीडिया क्लैश या बिफोर दिस ऑल दिस हियर, एक ऐसा केस जो आप नहीं भूल सकते हो, which is really ऐसा कुछ बहुत बड़ा केस नहीं था. आई जस्ट हैड अ वन हियरिंग इन दैट केस. उसके अलावा मैंने उसमें रोल भी प्ले नहीं करा, बट इट इज ऑल क्लोज टू माई हार्ट, क्योंकि आई वॉज देयर विद माई सीनियर, और सम रीजंस ही डिनाइड टू गो टू दैट हियरिंग. और उसमें बहुत बुजुर्ग थे वो जो क्लाइंट थे, एंड ही वॉज रिक्वेस्टिंग दैट सीनियर कि भाई आप आज हियरिंग ले लो, मतलब आ जाओ, टेक द हियरिंग, जो पेमेंट वगैरह का रहेगा फीस का हम बाद में दे देंगे. He was so old, requesting with the joining hands. मुझसे वो चीज देखी नहीं गई, and that in that hearing it was very clear कि उस दिन उनको तिहाड़ भेज देते, मतलब जुडिशियल कस्टडी जिसको हम अपने लीगल टर्म में बोलते हैं, जुडिशियल कस्टडी में भेज देते, अरेस्ट हो जाते वो. तो आई टुक दैट अपॉर्चुनिटी फ्रॉम माई एंड. मैंने रिक्वेस्ट किया कि उनको एक अपॉर्चुनिटी और दे दें. उसमें कुछ उनको जमानती लेके आने थे जो वो अरेंज नहीं कर पाए. तो आई टेक दैट अपॉर्चुनिटी कि भाई आप एक डेट दे दो, नेक्स्ट डेट पे डेफिनेटली ले आएंगे. तो जब मैं कोर्ट रूम से बाहर निकली, वो अपॉर्चुनिटी मिल गई. आई वाज जूनियर एट दैट टाइम. उस टाइम पे उन्होंने अपनी, ही वाज काइंड ऑफ अ मारवाड़ी पर्सन. आई डोंट नो थ्रू दिस पॉडकास्ट वो कभी देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे. ये उन्होंने पगड़ी अपनी सामने हाथ पे रखी, जेब से 100 रुपए का नोट निकाला, मेरे हाथ पे रखा, सर पे हाथ रख के उन्होंने बोला, बेटा चीज खा लेना, तुमने आज जो किया. दैट 100 रुपी नोट बहुत साल पहले is still right there in my purse. वो 100 रुपए का नोट मेरे लिए आज भी
बहुत लाखों से बड़ा है। सो हमारे प्रोफेशन में मनी इज नॉट एवरीथिंग। यस, जरूरत है बट नॉट एवरीथिंग। जिन लोगों का दिखता है कि वो नहीं दे सकते, वी शुड स्टैंड फॉर देम, क्योंकि ये चीज जो हम कैरी करते हैं, इट होल्ड्स ईच एंड एवरीथिंग ऑन आवर शोल्डर। उसको हमें यूज कैसे करना है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो वो केस मेरे हार्ट के बहुत क्लोज है कि उसमें उनका पेन, उनकी ब्लेसिंग्स, वो सब कुछ मिक्स था। इनिशियल डेज पे मैंने उस चीज को ऑप्ट किया, लिया। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने जूनियर्स को भी यही सिखाती हूँ कि जब भी वो अपने इस प्रोफेशन में फुल फ्लेज करें तो एटलीस्ट वो देखा देखी मुझसे ये चीजें तो सीख लें। नॉट एवरी वन इज राइट, नॉट एवरी वन इज रॉन्ग, बट इट शुड बी ओनली एंड ओनली डिपेंड ऑन यू कि आप सही हो या गलत। इट शुड डिपेंड ऑन यू। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो होता है ना, ये बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड चीज है, और जिसमें एक क्वेश्चन जो हमेशा सबके दिमाग में आता है कि like how do you see the link between human trafficking and other social issues like poverty, education, gender equality? See, everything is interlinked. Means these are the main reasons for human trafficking. मैंने जितना डीप पढ़ा है, जितना डीप देखा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता ही तब है सबसे पहले जब पॉवर्टी होती है, अनएडुकेशन होती है। ठीक है, लोगों को पैसा चाहिए, उसकी वजह से या तो सेल ऑफ अ पर्सन होता है या फिर वो खुद विलिंगली चले जाते हैं एंड बाद में रिग्रेट करते। सो पॉवर्टी इज द मेजर मेजर रीजन फॉर दैट। तो मैं कहूंगी एवरीथिंग इज, जो भी आपने नाम लिए, interlinked or the main source which encourages anti-human traffic, sorry, human traffic. So it is a very sensitive mudda, ये human trafficking वाला। तो I have stepped into this field जहाँ हमें हमारी नजर के सामने भी अगर कोई दिखता है ना, we can't even imagine that not even the female, male are also part of this। अगर आप कहोगे कि जैसे कोई लेबर्स है, ठीक है, उनको एक कंट्री से दूसरी कंट्री भेजा जाता है फॉर द पर्पस ऑफ वर्क, वो भी काइंड ऑफ स्लेवरी ही है ना। एग्जैक्टली। पार्ट ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग। लोगों की नजर में लगता है कि ओनली फीमेल्स आर द पार्ट ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग। सेक्स रैकेट चलते हैं, ड्रग्स दिए जाते हैं, और प्रोस्टिट्यूशन होती हैं। तो नो, नॉट ओनली द फीमेल्स आर द वन हु इज सफरिंग इन ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मेल आर आल्सो द वन हु आर सफरिंग द मोस्ट इन द ह्यूमन ट्रैफिकिंग। दिखता नहीं है। या बिकॉज अभी रिसेंटली मैंने एक मूवी देखा, एब्सोल्युटली अमेजिंग मूवी, इफ यू गेट टाइम यू सी इट इन नेटफ्लिक्स, गोट्स लाइफ बोल के, विच यही चीज दिखाए जो आप मेल कर बोले ना। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज पेनफुल पार्ट, बट इट्स अ फैक्ट कि मेल के साथ भी होता है। आई विल नॉट टेक द कंट्री नेम, बट यू कैन सी इट कि उनको मुंबई से बोला जाता है कि यू विल बी गोइंग एंड डूइंग सम वर्क, लाइक सम लेबरस वर्क, लेबर वर्क ही होगा लेकिन काम होगा, एंड उनको बीच रेगिस्तान में छोड़ दिया जाता है भैंसों को और लाइक लैम्स को वो करने के लिए। एंड द मूवी इज अमेजिंग मूवी, रियलिटी दिखाया हुआ है। आई हैव सीन अनदर मूवी की जो मेड बुलाते हैं, इंडिया से मेड बुलाते हैं एंड उसके बाद डिसअपीयर, no one knows what happened. So human trafficking entire vast जो thing है, what do you think, ये easy है इसको overcome करना इंडिया के लिए? Because इंडिया से आई थिंक सबसे ज्यादा नहीं नहीं, इंडिया में सबसे ज्यादा नहीं है। नहीं है, ओके। नहीं, इंडिया में सबसे ज्यादा नहीं है, बिकॉज मैंने पूरा स्टडी किया है, डीपली स्टडी किया है। देयर इज अ हायर रेशियो इन डिफरेंट कंट्रीज एज वेल, सो इट इज अ पार्ट इन दैट लिस्ट बट नॉट टॉप ऑफ दैट लिस्ट। We had so much deep conversations, but without rapid fire हमारा podcast अधूरा रह जाता है। So Rhythm, I have seen Himalayan rider, biker, like dabang तो आप हो ही। Which one is your passion? Like ये प्रोफेशनल फील्ड और वो आपका जो पैशन जो आप फॉलो करते हैं फ्री टाइम के लिए, लाइक राइडिंग, हिमालय। What's Lone Rambler? अभी तक मैं वही सोच रही हूँ, what's Lone Rambler? The one who is a soul traveler who loves to travel solo. Okay. For that, yeah. So कौन सा आपको अच्छा लगता है सबसे ज्यादा? ये कोर्ट में ये डिबेट करना? ये दोनों मेरे पार्ट ऑफ लाइफ है। मतलब आप ये सोचो कि प्रोफेशनली इफ आई एम इनटू समथिंग व्हिच रन्स इनटू माय ब्लड इज माय लिटिगेशन, ये नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ है मेरी लाइफ का जो मिसिंग है। तो अगर मेरा काम इम्पैक्ट करेगा, आई एम 100% श्योर मेरी पूरी लाइफ इम्पैक्ट करेगी। सो काम अपनी जगह है, मेरे पर्सनल लाइफ में जो मेरा शौक है, जो राइडिंग है, वो मुझे सुकून देता है। मतलब दोनों अपने अपने लेवल में मुझे सुकून देते हैं। काम करके मुझे अच्छा लगता है, आई एम
डूइंग समथिंग फॉर समवन, ठीक है, और राइडिंग इज समथिंग आई एम डूइंग फॉर माई सेल्फ। तो दोनों लेवल में मुझे सुकून मिलता है, किसी के लिए करके और खुद के लिए करके। तो आई थिंक ये दोनों का ना बैलेंस होना चाहिए, तभी लाइफ सीधी पटरी में चलेगी ना। एक से आप डाउनलोड एग्जैक्टली, करोगे, फिर अपलोड करोगे, डाउनलोड अपलोड। बिल्कुल। जब मैं बहुत टायर्ड हो जाती हूँ या हाँ, किसी चीज से बहुत परेशान होती हूँ, मैं अपनी बाइक लेती हूँ, मैं चली जाती हूँ। मेरे फैमिली में भी कोई मुझे ये नहीं बोलता कि क्यों जाना है, नहीं जाना है। दे नो कि अब इसको ये जरूरत है, ये जाएगी, जब डिटॉक्स। आएगी तो आई विल बी अ न्यू वन। मैं फिर से वो एनर्जेटिक हो के फिर दोबारा से स्टार्ट करूंगी सारी चीजें। तो मेरे लिए वो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ऐसे कभी हुआ है कि आप डिटॉक्स होने गए हो, हिमालयन राइडिंग कर रहे हो या बाइक, वहां पे जाके आपको कोई नया केस मिल गया? हाँ, मुझे केस कभी थकाते नहीं है। हम्म। मेरे पास जितना काम आए मैं उतनी खुश होती हूँ। मुझे काम कम होगा तो मेरा स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। तो इसीलिए काम मेरे पास जितना आता जाएगा, आई एम द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ। मैं ट्रैवल कर रही हूँ, मेरे को वहां पे भी केस आएगा। देखो, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कनेक्टिविटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तो एडवर्टीजमेंट में होते नहीं। तो मैं जहां जहां जिस जिस स्टेट में जाती हूँ अपने केसेस के लिए, आई एम हैविंग माई केसेस एट हिमाचल, मुंबई, जैसलमेर, ऑलमोस्ट एवरीवेयर, कोलकाता। तो जहां जहां मैं जाती हूँ वहां मेरी कनेक्टिविटी होती है, वहां मैं नए लोगों से मिलती हूँ, क्योंकि जनरली मैं सोलो ट्रैवल करती हूँ। तब इंटरनेशनली भी मैंने किया, मैंने इंटरनेशनल भी सोलो किया है। तो उसमें मेरे को अब नए नए लोगों से कनेक्ट करके उनके बारे में जानना, अपने बारे में बताना अच्छा लगता है। रीजन, इफ दे नो अबाउट मी, दे कम टू मी व्हेन दे नीड समथिंग। या एब्सोल्युटली। तो अगर उनको कुछ हेल्प की जरूरत पड़ती है, तो वो मुझे बेझिझक होकर कनेक्ट कर सकते हैं, एंड ऑलवेज बी देयर विद देम। तो कहीं ना कहीं मेरी ट्रैवलिंग मेरे काम को सपोर्ट करती है, और मेरा काम मेरी ट्रैवलिंग को सपोर्ट करता है। डिटॉक्स सबके लिए जरूरत होता है। हम अभी आपको डिटॉक्स करेंगे रैपिड फायर से। ठीक आर है। यू रेडी? हम या, फटाफट इसका जवाब देंगे और सोचेंगे नहीं, तो दिस विल ठीक बी है। रॉ। ओके, सो व्हाट द, ना ये सबसे इंटरेस्टिंग होगा मेरे लिए भी। इफ यू कुड टेक निकी एनीवेयर इन द वर्ल्ड, वेयर वुड बी इट? टर्की, टर्की? यू वांटेड टू टेक क्योंकि मैंने सुना है कि वो सबसे ज्यादा पेट फ्रेंडली कंट्री है, मैंने सुना है। आई विश आप मैंने उनको सुना है। कुछ दिन पहले ले जाते, बिकॉज उसी का भी हमारा फाइट चल रहा है। वहाँ का लीगल गवर्नमेंट ने अभी परमिशन दिया है, लाइक कि स्ट्रे डॉग्स को मार दो, तो उसी का फाइट चल लेट्स रहा होप फॉर द बेस्ट कि वैसा ना हो। एंड जो जैसा मैंने सुना था मैं है। वैसा यस, उसको ले जा। एब्सोल्युटली, टर्की लाइक इस्तांबुल एंड टर्की, फ्लफी कैट्स एंड यस, डॉग्स, वहाँ का मतलब टूरिस्ट अट्रैक्शन था। आई यस। डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन विद द लीगल पार्ट। अच्छा, टर्की डन. Rhythm, you broken the social media by the act what you have taken for the dog Coco, but that is a small part of your journey. Yep. There's an entire journey there must be, and we would love to deep dive into all the scenarios which you came across till now. Rhythm, let me know what makes you to join this law firm or law journey. Okay, so first of all, thank you so much for making me a part of this. Our And pleasure. this is a small scenario which has taken place in my field of profession, and has connected with so many people, including you. And this is a platform where I can share what a lawyer used to do in their life, how, what kind of a struggle they face. And the entire life of a lawyer is very happy and wealthy, but the brief details which a starting level lawyer which sees and grow together with the different senior lawyers, I'll be sharing with all my heart to all of you. So the question which you have asked is just similar to that. And I had no thoughts to be into this field earlier. And initially, I have done my graduation, basic graduation, basically. And later on, when I just saw the surroundings, which are kind of out of my box, which I feel that the things that are happening in front of me is not going correct. So I chose to be into this field, that if I'll die someday, I wish that I could bring a change. A single change will help me to die peacefully. So that was my only motive to come into this profession, and I'm very happy that I have started doing this with the case of Coco. Dying touchwood, I hope
people like you, who have some purpose to live in, shouldn't die so early. A long life to go. But there is a curiosity because a female is hosting this show, a female who fought for the justice, and also a female who died brutally. I hope you know the Arjikar Yes, medical hospital case. exactly. So there is a keen question from a mother of a daughter. When you joined this post of being an advocate, being a lawyer, because there are you already have been done the anti-trafficking, human trafficking, the justice and all the court. Everyone know there are something threat is always around you. So how much your father is proud on you and how much your mother is scared when you go outside. Look, to be honest, for me, my parents are very clear on their part that they know how strong I am. Mm-hmm. And they know that be it my mother or my Mm-hmm. father, there is no Mm-hmm. difference in the thoughts of both of them. Being a male or female mentality, I can see no difference in both of them because they know that their daughter is strong enough to face each and everything by herself. If I'm stepping Mm-hmm. out from my house, they know that I am the only person who can handle all the situations by myself. And Mm-hmm. this is the most important thing, the courage which all the females should have in them. Because there's a one situation or statement we can say that people make you scared if you get scared. I Mm-hmm. would say that. So if you are actually getting scared of something, if you will show that you are not scared of that, people who are making you scared will run away. That is my perspective of life. So you need to be strong enough. If you are a mother of a daughter, you should Mm-hmm. make your daughter strong enough that we are there with you. Go and do the right thing in your life, and we are always there to support you. That every step of courage which a mother gives to a daughter Mm-hmm. is just like something you can see which is right now in me, which my parents have given. Absolutely. See, parents are always insecure about the environment, about the surrounding. And but somehow our profession, our field, and our mental stability to show them that yeah, we are protected, we are strong enough. For this is a message to all mothers and entire nation. आप डांस सिखाओ, ड्राइंग सिखाओ, स्विमिंग सिखाओ या ना सिखाओ, सेल्फ डिफेंस अपने बच्चे को प्लीज सिखाना. कुछ टेक्निक्स उन्हें सेल्फ डिफेंस के लिए आना चाहिए, कुछ हेवी वेट्स उन्हें उठाना आना चाहिए. दिस इज फॉर एंटायर वर्ल्ड वाइड नेशन. सेल्फ डिफेंस अपने बच्चे को सबसे पहले स्कूल में सिखाना, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में. बिकॉज आजकल आप देख ही रहे हो, द थिंग्स आर गोइंग ऑन अराउंड, not safe. Either आप बोलो निर्भया, लक्ष्मी, and now Abhaya. When biggest inspiration in life? मदर, Oh, nice. उन्होंने अगर वो स्ट्रांग नहीं होती बीइंग अ फीमेल लेडी, शायद मुझे उस लेवल का स्ट्रांग नहीं बनाती. मैंने उनको देखा है हाँ को हाँ और ना को ना करना, और उनको देखा देखी मैंने सीखा है कि गलत है तो है, वेदर आपको अकेले ही लड़ना पड़े. और उस अकेले में मैंने हमेशा अपने पीछे अपने मदर को देखा है, तू कर, मैं तेरे साथ खड़ी. सो शी इज द बिगेस्ट वन. और मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, मेरे फादर और मेरे मदर के थॉट्स में कोई डिफरेंस नहीं है, बट बीइंग अ फीमेल वो चीज सपोर्ट देना ना, मेरी मदर ने किया है. मेरे फादर ने कभी मना नहीं किया मुझे, वो कभी हमारी कॉन्वर्सेशन नहीं आया. उनको पता है मेरी बेटी जो कर रही है सही कर रही है, मदर है, उन्होंने हाँ कर दिया, एवरीथिंग इज गुड टू गो. So mother is the main power of boss lady. Yes, yes. Amazing. You enter into the case of Coco. So how's the journey? How it started? See, it started from a piece of newspaper, and a day when I woke up and I just have a habit of reading and going through a newspaper every day. So that particular day, I also saw that heading in the newspaper, and that shook me up. I was not at all comfortable after reading that because I also have my fur baby daughter at my place. And I know that how being a mother of a human and how being a mother of a fur baby is two different things, or even more than being a mother of a human baby, because human baby Yeah, can I absolutely agree on this point. right, Absolutely. because human baby can speak, might be revert to you someday, but these kids can never speak to you what they want, what they wish to have. They are happy with all the things you give them, whether it's Correct. a piece of biscuit or a packet of biscuit. They are just their happiness is same. So I am not a mother of a human baby, but I am a mother of a fur baby. You can say that
she's everything to me. That used to Nikki. connect I remember. I like remember her name, Nikki. And the other one name. What is that name? his name is Golu. Godu. Yeah, I remember. Yeah, same. Yeah. So my daughter is everything to me. Now coming to the case of Coco, it just correlated to my could have happened similar to my girl. I would have died. Yeah. Means Yeah. I can see her suffering this pain, and if these kind of people will survive in this society, they Yeah. may harm to one or another child as well, Yeah. and it might be my child as well someday, because it will be encouraging these kind of a people that if somebody doing this acid attack who did on Coco is moving freely, it will encourage other same mentality people that they can also do and they can be free. So I was somebody who had a thought process in my mind that I will not let him go this way. When I saw that case, I heard about the all the details which were filed by the complainant at police station. Got the information of complainant. I visited at her place, locality, and inquired that whether she is comfortable to engage me as her counselor. But unfortunately, due to so many people visiting to her, she lost all her trust and faith, and she was not allowing me to proceed in this matter. After a lot of convincing stage which I have been through, by end of the day, I got that paper signed from her, and there goes the way where I started my journey. So when I get that Yeah. piece of paper in my hand, I inquired with the police officials, the doctors, the MLC, which was done to the dog, that Coco. And later on, I came to all the investigation process. The charge sheet was filed, and then we came up with the proceedings in the court that we basically call as a trial proceedings. So in that trial proceeding, initially we went through the charges which were framed. The court set all the evidences, checked each and everything, and finally convicted that person. The journey was 4 year long, but 2 year I would say that it went in entire COVID. And if it is in a books that this journey was for 4 years, but actually it was for us for 2 years after COVID, and it was a speedy proceedings, and finally we all have the orders in our hands. So you talked to the family of Coco? Yes. Yes. So when the person attacked Coco, what was their first step? What did they do? Look, initially they didn't know that the acid was thrown on that child. The moment that man threw the acid on that dog, the dog rushed to his home where the owner was there, and that owner when the dog started moving to and fro on the bed, rubbing here and there on the bed, just like itching. There is some kind of itching going on in its body, and the owner was unable to understand that. She tried to calm the dog down and just move a pat. We just do a patting to a dog. She did that, and later on realized that as soon as she has touched the dog, her fingers were burned. She started losing The owner's finger. skin was losing from her fingers, and that made her realize that it's something very strong which has impacted the skin of the dog. She suddenly rushed to Sanjay Gandhi Hospital, which is there in Rajouri Garden, Delhi, and there they confirmed that the acid was thrown out. So she left. She was left nothing with. And she rushed to the police station at very next moment. The next courage, the courageous lady, which about whom we can talk is that lady, because if she would not have taken that step, I would not be a part of it. We would not have been a part of this, which we are doing today. So Coco's mother, right? The owner. What? filed the case right away. Omvati. Omvati is her name. And right away she filed a case, and there this journey has started where I have looked the piece of news in the newspaper and I proceeded. बहुत सटन क्वेश्चन है जो मेरे दिमाग में ना बहुत दिन से चल रहा है कोको को स्पेशली देखने के बाद एक पुलिस वाले ने इन्वेस्टिगेट करा टू कम टू नो द सिचुएशन तो बगल वाले ने जो नेबर ने ही ऐसे थ्रो करा है how the owner come to know? Because there is a shop there and there were eyewitnesses who have confirmed that this is a man, and even my complainant means the owner of the dog
already knew that particular person is totally against my dog. She already knew because that the same person, the accused person, has already attacked my dog few days before with some iron And rods, and luckily my dog was saved. So why is against? because he don't like dogs. Simple his phenomena was that he don't like dogs. He did this to so many stray dogs as well, and there were nobody to take a stand for them, and Coco became the voice for all of them. Yeah, like you don't like dogs, stay at home, don't come outside. We can't change the mentality of people, and but this is the way we can treat them, that if you'll do this, you have to suffer this. Yeah. So have you met the accused He was person on? always there in the trial proceedings. When I was there in the court on every day, he used to come by joining hands, ma'am namaste, ma'am dekh lena. But I used to just ignore that guy because if that was a case of any human, I would have Mhm. thought to talk to him because it's a human nature to harm each others, right? But Mhm. I would call a psychopath a person if you are harming just a voiceless, Dog, yeah, right? yeah. And I mean, like, I wanted to know, जब आप उनका नाम आप हम ले सकते हैं? Yes, it's already there on the order sheets. It's State versus Mahinder Singh. महेंद्र सिंह. So महेंद्र सिंह जी के एज क्या होगा? It's approximately 70 years. 70 years. Yes. तो फिर कंट्री हमारे ना हमेशा गिव अ स्लोगन की बुजुर्गों को आप इज्जत दो, बुजुर्गों का आप इज्जत करो, respect, give respect, all are okay. But 70 years of Mahendra Singh did this to a small baby who can't speak. This is a psychological problem. You know, this is the frustration. Maybe उनके घर में कुछ frustrations होगा, maybe surrounding में कुछ frustrations होगा, maybe उनके नेबर के साथ कोई अंदरूनी फ्रस्ट्रेशन होगा, बिकॉज ये ऑलरेडी पहले भी हो रखा है कि नेबर ने डॉग को जहर दे दिया क्योंकि उसके ओनर के साथ उसको पंगा था. लाइक प्रॉब्लम ओनर के साथ था, वो मतलब उसकी बदला काइंड ऑफ लिया. एंड उसने डॉग को मार दिया. तो इट इज वेरी पिटी थिंग उनके लिए कि डॉग ही तो है, कौन ही क्या ही करेगा. एंड पुलिस वाला भी बोलेगा कि मैं चोर पुलिस और ये सब क्रिमिनल्स को छोड़ के मैं अब एक डॉग के पीछे जाऊं, ये तो आए दिन होता रहता है. So this is justice actually owned by all the pet parents. No. जो स्ट्रे फीडर्स है उनके लिए भी ये विक्ट्री है. आप जब महेंद्र से बात किए, उनके घर वाले से बात किए? No, I never wanted to even talk to him. I always ignored him. I always ignored the people who were accompanying him. I never wanted to hear namaste from him. I was never in that mood to see him. In fact, I just had to bear him because I have to stand just opposite to him to face the trial proceedings. But my inner thought and I would say that there was something in my heart that I the few moments back, Kasuri, you said that 70 साल के हैं, इज्जत दो. I opted कि इज्जत तो मैं दूंगी, मैं डायरेक्टली कुछ ना करके, but the coat I am wearing, the uniform I am wearing, I'll use that to make him realize what he has done. Absolutely. Finally, Absolutely. Yeah. It will be interesting to listen that आपकी डिफेंस लॉयर ने क्या अपना पेशकश दिया होगा. He tried all his level best to save his client, to be honest, because he's the one who is not with something जो गलत था, but he's just performing his duty. He's a lawyer, he has to defend his client, but from deep inside, from his heart, he knew that जो इंसान को वो डिफेंड कर रहे हैं, he needs to be punished. उन्होंने हर बेस्ट पॉसिबल की. इट वॉज अ गुड कॉम्पिटिशन अमंग अस. उन्होंने सबसे बेस्ट कोशिश दी कि वो सेफ हो जाए, महेंद्र सिंह सेफ हो जाए, एक्विटल हो जाए. उन्होंने यहाँ तक ओमवती से क्वेश्चन किया कि क्या हम इसके वैक्सीनेशन कार्ड देख सकते हैं, क्या आप ओनरशिप का प्रूफ दे सकते हो अपने. तो आई वॉज देयर हु जस्ट काउंटर्ड कि आपके क्लाइंट का मेरे कंप्लेनेंट के डॉग पे एसिड डालने से उसके ओनरशिप को कैसे डिफाइन करता है. अगर आज मैं दिखा देती हूँ कि मैं चलो ऑन रिकॉर्ड कहीं भी इसकी ओनर नहीं हूँ, बट देयर इज अ टर्म कॉल्ड सो मोटो. आंखों से देखा हो रहा है, आई विल टेक अ एक्शन. अगर मैं रास्ते में चलते कुछ होता देखती हूँ जो मुझे लगता है कि वो सूटेबल नहीं है, एंड इट इज अ हीनियस क्राइम व्हिच हैज टेकन प्लेस इन फ्रंट ऑफ माय आईज, आई कैन कॉल द पुलिस एंड बी द कंप्लेनेंट. तो इसी को बोला जाता है
एग्जैक्टली उन्होंने इसीलिए क्वेश्चंस उठाए कि किसी तरीके से ये केस वीक हो जाए, बट द जज who was handling this matter, she luckily, I'm very lucky that the entire matter was in the hand of, means the final stage, which was most important, was in this in the hand of a judge, Richa Sharma ma'am, who is amazing. Exactly, it was amazing because not only this matter, we have observed in so many matters that she is the one who listens to all the proceedings from both the ends altogether. If the complainant is wrong, she strictly मतलब वो होता है ना डांट देने वाला हिसाब, वो वैसे करती है चाहे कंप्लेनेंट ही क्यों ना हो. She handled that case very smoothly, very amazingly, I would say. क्योंकि बहुत बार सामने वाली पार्टी ने और काउंसिल्स ने लिंगर ऑन करने की कोशिश करी मैटर्स को जब वो एडजर्नमेंट्स देते थे. इन आवर फील्ड एडजर्नमेंट्स इज तारीख पे तारीख. आज काउंसिल इज नॉट अवेलेबल, I would like to take a date. आज he is unavailable, आज वो दूसरी कोर्ट में है तो वो आज डेट. बट मल्टीपल टाइम्स जब ये चीज हुई एंड baby is suffering after all, complainant after filing the complaint is suffering, then I questioned that the person who is standing and taking adjournment has also signed the document taking the authority that he will also represent the accused person. अगर वो अथॉरिटी पेपर पे स्टार्टिंग में दे चुका है कि ही विल रिप्रेजेंट द अक्यूज्ड पर्सन, एडजर्नमेंट क्यों ले रहा है सीनियर काउंसिल के लिए? ही कैन ऑल्सो टेक represent the accused person today, and also he can argue in the matter. Why he need the senior counsel for that? अगर आपको arguments नहीं पता, आपको facts नहीं पता, just leave the वकालतनामा, just we can say that withdraw your name from the वकालतनामा, take a stand by the side of the court. Don't be a part of this case. So this journey was difficult, जहां हमें ये tactics को भी face करना पड़ा. सामने वालों को deep inside पता था कि ये केस क्या है और किस लेवल तक जाएगा, but it was also a wonderful job from their end. They tried their level best through tactics or their brain money power questions. No, there was no money power. Brainstorming questions, यही वाले जैसे मैंने बताया, वैक्सीनेशन नहीं है, ओनरशिप का प्रूफ दिखाओ. They just wanted to make the court realize कि अगर ये ओनर ही नहीं है तो ये केस जता रही है. अगर ये ओनरशिप प्रूफ नहीं कर पा रहे तो ये केस लड़ ही नहीं सकते. बट कोर्ट इस चीज को बहुत बेहतरीन तरीके से समझा एंड रियलाइज कि इफ she has filed the case, she has sufficient documents, evidences to place it on record. She is able to justify each and everything which is there on FIR in her statement across. Everything is going on the track. The case needs to be heard as per the basis of merits and facts. And the result is, तो उनको penalty, कुछ money penalty भी लगा? Yes, 10,000 rupees fine उनको देना पड़ा. जो accused person है उस पे फाइन लगा 10,000 रुपए का. 1 साल की तो इम्प्रिजनमेंट है ही है, और साथ में 6,000 समथिंग 6,500 समथिंग का कुछ अमाउंट है जो कोको के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो भी उसके टेस्ट हुए, जो भी उसका इलाज चला, मेडिसिन वगैरह, व्हाट ऑल द मेडिसिन दीज एक्सपेंसेस हैज टेकन प्लेस, तो वो सारा पे ऑफ करने के लिए कोर्ट ने एक्यूज पर्सन को बोला है. एंड अभी मतलब वो क्या जेल में है कि बाहर है? 1 month, 1 year की इम्प्रिजनमेंट हो चुकी है, बट एवरी पर्सन हैज राइट टू गो टू द अपील. तो उसको 1 महीने का टाइम दिया है टू रीच आउट टू द अपीलेंट कोर्ट इफ ही विशेस टू. 1 साल की जेल तो हो ही चुकी है उसे, तो 1 महीने के अंदर एक ड्यूरेशन है कि वो अगर करना चाहता तो 1 महीने के अंदर ही अपील में जाएगा, अदरवाइज ही कांट. तो अगर वो अपील में जाता भी है तो लेटर ऑन we'll get the summons and we'll also be a part of that case. तो मतलब अगर वो चाहे तो अभी फिर से 1 महीने के बाद फिर से चीजें घूम सकती है? नहीं, चीजें नहीं घूमेंगी. अपील में जाने के बाद आपकी जो सजा होती है, जो 1 साल की हुई है, वो कम हो सकती है बट खत्म नहीं हो सकती है. ओके, ये पॉइंट है. मतलब सजा मिलेगी बाय ए हुक और बाय क्रुक? नो, ये तो हो ही नहीं सकता कि वो फ्री हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी ही इज कन्विक्टेड. He has not been acquitted in the matter. ठीक है, तो वो कन्विक्टेड है, वो अपनी कन्विक्शन को चैलेंज नहीं कर सकता, बट वो हाँ उसके लिए अपील के लिए जा सकता है. जो 1 साल की है वो कम हो सकती है, क्योंकि फैक्ट्स केस के तब भी सेम रहेंगे. अगर वो चैलेंज करने के लिए जाता भी है तो फैक्ट्स, फाइल्स, ऑर्डर, जजमेंट, एवरीथिंग इज सेम. नथिंग कैन बी चेंज्ड. आपको थ्रेट कॉल वगैरह कुछ मिला कि केस विड्रॉ कर लो? हाँ, मतलब आई वुड से कि फाइनेंशियल बेनिफिट्स के लिए भी बहुत बोला गया, और थ्रेट कॉल्स भी आए कि विटनेसेस नहीं आने चाहिए.
मतलब विटनेस भी कई बार काफी घबराया, हमें उसको समझाना पड़ा कि चला जाए, क्योंकि इट इज अ मैटर ऑफ अ चाइल्ड। उसने बहुत सपोर्ट किया, बट एक टाइम के बाद वो भी बहुत घबरा सा गया था कि मैं चला जाऊं नहीं जाऊं। बट फाइनली उसकी स्टेटमेंट ने हमें बहुत हेल्प आउट किया। मुझे भी बहुत कॉल्स आए थे, बट आई इग्नोर्ड ईच एंड एवरीथिंग, बिकॉज मेरे लिए सब चीजें मैटर नहीं करती। इफ आई एम फाइटिंग फॉर समथिंग आई हैव टू डू इट। मतलब कुछ होता है हो जाए, बट वही वाली बात जैसे मैंने अभी आपको कही, इफ आई डाई आई नीड टू बी लाइक अ पर्सन। Something. हाँ, वो कुछ करते हुए गई जो वो करना चाहती, दैट्स ऑल। The purpose should be, yeah, there should be some purpose of living. राइट। Which I absolutely can connect your vibration because as a pet mother you say, तो वो अलग लगाव होती है। एंड ट्रू। जब मैंने भी कोको का वो चेहरा देखा ना, ट्रस्ट मी, अब आप इस टाइम में बहुत ऐसे लोगों को मिलोगे जो ऑन कैमरा आपके साथ आके बात करना चाहेंगे, बट आप उनसे कनेक्ट कर पाओगे जो ऑफ कैमरा आपसे बात करके पूछेंगे हाल। ट्रू। यू वेरी नो, आप उनसे कनेक्ट करोगे जो आपके साथ जुड़ना चाहेगा कंटेंट के लिए नहीं, बट रियल केयर के लिए। ट्रू। और वो जो कनेक्शन होगा ना, दैट विल बी अ डीप कनेक्शन। और मेरे को यही, लाइक नाउ लास्ट कुछ दिनों से आई हैव सीन ऑल मेनी मेनी पीपल। अब एक सबरीन बानू बोल के एक है, उनको भी हम लोगों ने ना बहुत बहुत महीने पहले एक्सपोज कर रखा है। तो डॉग्स को लेके ना एक बिजनेस बना लिया है, विच इज अ वेरी डिफिकल्ट पार्ट। जो रियलिटी में काम कर रहे हैं ना शेल्टर, जो रियलिटी में फीडर्स है, जो रियलिटी में आप जैसे ऑनर लॉयर्स है, पुलिस वाला है, उनकी जो ऑनेस्टी है ना, उसमें फिर लोगों को एक प्रश्न मार्क हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस फेक पर्सन जो 4 डॉगों को खाना खिलाएंगे और डोनेशन मांगने बैठ। समझ लो अब कि ना, आसपास के 4 डॉग को खिला लिया, उनको फोटो ले लिया और इंटरनेट में डाल दिया कि भाई ये रहा जीपे, ये रहा पेटीएम, ये रहा बैंक अकाउंट। जिसके कारण जो जेन्युइनली बहुत सारे इंटरनेशनल ऐसे क्लाइंट्स हैं जो हेल्प करना चाहते हैं। बिल्कुल। अभी हमारी काफी सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट भी आ रहे हैं इंटरनेशनल। कनाडा है, कैलिफोर्निया है, उनके साथ भी मेरा प्रोजेक्ट आ रहा है। उनको भी ये चीज बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ी है कि बिकॉज ऑफ दिस अननेसेसरी हाइप अभी जो उन्होंने ना क्रिएट कर दिया है। और अभी लास्ट कुछ दिन पहले मैंने उनका भी देखा था, मानवी राय मैम का, उन्होंने भी पोस्ट डाला था कि फेक अकाउंट, वो धरने से पैसे उठाए जा रहे उनके नाम पे, उनको पता भी नहीं। एंड शी नेवर आस्क्ड फॉर मनी एंड एनीथिंग। तो ये प्रॉब्लम भी आपके साथ अभी तो आप ज्यादा फेस करोगे इसको। तो गुड लक फॉर दैट ऑल्सो कि मैडम दस फॉर कंटेंट। बट एज अभी अब बिहाइंड द सीन हम लोग उस दिन भी जैसे हम शूट नहीं कर पाए थे, एक इमरजेंसी केस पे आपको जाना पड़ा। आर यू कंफर्टेबल टू टॉक अबाउट दैट केस? यस यस, अभी तो टू बी हाँ ऑनेस्ट बहुत सारी डिटेल्स नहीं है उस केस पे, क्योंकि हाँ। वो रिसेंटली केस हुआ है। एफआईआर हम्म तो ऑन स्पॉट हो गई है उसमें। हम्म उसमें एक सीआरपीएफ के जो पर्सन है, उन्होंने एक हम्म डॉग पे अटैक किया है। वो नागालैंड से हैं, और द पीपल नियर बाय आर सेइंग दैट ही वांटेड टू ईट दैट डॉग, और उस वजह से ईट उस द पे डॉग। एग्जैक्टली, तो उसकी वजह से उसने अटैक किया। बट द फीडर जो फीड करता था उस डॉग को, और जो उसका ध्यान रखता था, घर में रहता था, उसने जब आवाज सुनी नेबर में फ्लोर पे, तो डीप कट। मैंने ऊपर किया था, तो मुझे ही थोड़ा डिजनेस एसेट सा हो गया था थोड़ा सा। तो बच्चा तो सफर करके हटा है, तो अब एफआईआर तो हमने करवा दी है। एफआईआर ऑलरेडी बीन लॉन्च्ड ऑन सेम डे। अभी हम्म investigation is ongoing. The concerned doctor is in the direct contact with me. He is giving me all the updates about the stability of that dog. वो भी ठीक है नहीं। Once he will be, हमारा अभी जो मेन कंसर्न है वो ये है, once the dog will be stabilized, सर्जरी तो हो चुकी है। Once the dog will be stabilized, the dog will be again sent to that same particular locality. वो पर्सन अभी भी वही है। अब वो तो दोबारा वो से कहाँ अटैक, है, कहाँ पे है लोकेलिटी? इट इज पटेल नगर, न्यू दिल्ली दिल्ली। पटेल नगर। यस। एंड तो ये हमें सीआरपीएफ का बंदा, तो उनको कोई मतलब कुछ पूछा नहीं गया क्यों वो ऐसे अटैक किए, या कोई अरेस्ट विटनेस किया मिलता? उसको, अरेस्ट किया हाँ हाँ। उसको, बट अभी ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशंस हैं चीजें। ही एडमिटेड, ही उसने इतनी बड़ी बात बोली कि मैं डर गया था इसलिए मैंने सेल्फ डिफेंस में मारा। बट द कट्स जो हैं वो साफ दिखाते हैं दैट इज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ डिफेंस। आप सेल्फ डिफेंस में एक बार मारोगे, उसके इतनी बार मारा है। ही वॉज अबाउट टू कट द थ्रोट ऑफ डॉग। द नेक्स्ट ओ अगर नहीं होता तो गॉड।
को काटने वाला था एंड लोगों ने ये चीज बहुत क्लियर but कर, it's उसके terrifying. बाद भी वो इतना शांत था, तो वो अटैक कर ही कैसे सकता है कि आपको सेल्फ डिफेंस में उसको इतना अटैक करना पड़ा। तो आई एम लाइक वेटिंग फॉर द चार्जशीट टू बी फाइल्ड एंड देन आई विल कम इनटू Mhm. दिस लेटर। अभी तो And सिर्फ do you इन्वेस्टिगेशन। think कि ये with uniform के साथ easy रहेगा? It will be not a easy journey, I think. No, it will be easy because it will be difficult for him now. First, that he was into Yes, uniform, and second, I am into this case. I like that confident, absolutely. But you know कि I what to say, कभी कभी रक्षक ही भक्षक बन जा रहा है. Right. You know, the people are behind this uniform are getting so dangerous. Right. It's dangerous. मतलब क्या बताऊं मैं, हर जगह जहाँ पे भी अभी आई डो नॉट नो कितना बाहर आएगा नहीं आएगा. आरजीकर वाला जो भी अभी चल रहा है उसमें भी यूनिफॉर्म वाज अटैच्ड, education was attached, the Delhi wale may be attached. Like, why India is not getting out of all these things? Like, trust me, if you ask me, I feel literally safe with my daughter in Dubai at night around like 3 a.m. also. If I go out with my daughter with wearing like nothing, I'm telling you, I'm wearing nothing, still nobody will come and see me or do anything. That's my protection we get from the government in Dubai. I do not know when we will see India like that. India is changing, Kasturi. We have came up with so many new laws right now. Changes in laws. I don't know how it will work, but yes, definitely the changes in laws which we are studying right now, because we have to start it from scratch again. Yes. So we know that how different the sections are and how they needs to be implemented once we will be into this field. Right now, we are onto the stage where we are proceeding the previous matter as per the previous laws, and the upcoming matter which are registered right now will be considered on the basis of the fresh laws. So right now we are in a mixed match situation with previous laws and the new laws. But once all the previous matters will be settled as soon as possible, and we'll completely turn up to the new and fresh laws, the BN and other evidences and the different laws which we are having, the totally change sections and everything will be changing the thought process of the people that whether they should do a crime or not, because the penalties have been imposed. Now the imprisonment, the years of imprisonment has been changed. The fine, which was earlier for approximately 2,000, 5,000, now have raised up to lakhs as well. So once Okay. they That's good. come out from the pocket, they need to pay. Look, once we will get into that stage, people will bring some tactics to get relief from that as well. But I would say something has changed now, which we were following इतना साल पुराना law. अभी जो है हमारे हाथ में, it has totally changed and it's on the basis of the crime which are happening in India. उसके basis पे changes आए हैं. So let's see and hope for the best that it will bring a change now. So it will be a knowledgeable part. आपकी तरफ से आएगी एक चीज जो एक नॉर्मल इंसान जो maybe she don't have pets or anything, or maybe have, वो अपनी आंखों के सामने if he or she see that cruelty is going on, उनका first step क्या होना चाहिए? It's a really difficult question because it totally depends on the mentality level of a person. पसंद करता है कि नहीं करता है? अब सामने खड़े मान लो आप और मैं खड़े हैं, आप पसंद नहीं करते हो, मैं करती हूँ, ठीक है? Somebody hit a dog with a stick. आप कहोगे बहुत अच्छा किया, बहुत खराब करता है, गंदगी मचाता है. Mentality. Exactly. I would say मारा क्यों? पानी डाल देते, भगाना ही था तो. It totally depends on mentality. I can't say, Kasturi, I don't have a specific answer for this question because every person has its own thought process, their own mentality. आप एक फैमिली में भी अगर देखोगे, if you like dog, your relative will not like your dog. Yeah, absolutely. So जब हम अपनी फैमिली में चेंज ला सकते, I can't even answer this question कि कोई थर्ड पर्सन क्या कहेगा, right? तो है कि आप mentality change नहीं कर सकते. Exactly. My opinion, मैं opinion देना चाहूंगी इस पे, not a perfect answer, but my opinion is this कि अगर ऐसी क्रूअल्टी आपके सामने होती है, whether you don't like dogs, but आप जो मार रहा है उसको अगर देखोगे, अगर वो उसको मार सकता है, कल को वो आपकी सोसाइटी के लिए भी, ह्यूमन के लिए भी हार्मफुल हो सकता है. Exactly.
अगर तो वो एक निर्बोल के साथ इतना क्रूएल हो सकता है तो इंसान के लिए तो वो और खिलसेगा ना, लाइक और वो फेड अप हो जाएगा। एग्जैक्टली तो आप एटलीस्ट एक वॉइसलेस के लिए स्टैंड नहीं ले रहे हो, आप जो मैडम ह्यूमंस है उसके लिए स्टैंड लो, अपनी सोसाइटी के लिए स्टैंड लो, ताकि वो आपकी सोसाइटी में क्राइम रेट कम हो, चाहे वो ह्यूमन के साथ हो, एग्जैक्टली। चाहे वो कहीं ना कहीं आप किसी को रोकते हो तो वो इम्पैक्ट कहीं सेकंड जगह भी करता है। तो आप वही सोच एग्जैक्टली। के आप स्टेप लोगे तो इट विल ऑटोमेटिकली ब्रिंग अ चेंज इन अ कंट्री जहां लोग बोलेंगे हमारे यहाँ तो सुनवाई नहीं होती, लॉज बड़े वीक हैं। एग्जैक्टली। तो लॉस हम्म। इसलिए है क्योंकि लोग उसमें कंबाइनली सपोर्ट नहीं करते एक दूसरे को। तो यस। वही चीज है, जैसे कोई कंप्लेंट रजिस्टर होती है, कंप्लेनेंट अगर करेज करेगा तो वो लड़ेगा, बट वही डर से बैठ जाएगा तो वो केस ना सामने आएगा, और जिसने किया है उसमें हिम्मत बढ़ जाती है सेम चीज को 4 लोगों के साथ। दूसरे के साथ। हाँ, एग्जैक्टली। सिंपल, मेरे हिसाब से सिंपल एक ही चीज है, चाहे वो आप इंसान के साथ देखो, चाहे वो आप जानवर के साथ देखो, कहीं पे भी अनैतिकता चीज, एथिकल चीज ना दिखे तो आवाज उठाने में नहीं डरो। जो ये अब तब तक हम लोग कब तक क्रिप करते रहेंगे कि गवर्नमेंट नहीं कच कर रहा है, लॉ साथ नहीं दे रहा, वकील नहीं सुनता, डॉक्टर नहीं सुनता। ये स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स, स्टार्ट वर्किंग। एग्जैक्टली मीन्स खुद करो। I being into this case, even after this case, I have heard so many questions from my same field कि मैडम आपने कुत्ते को तो इंसाफ दिला दिया, लेकिन उन कुत्तों का क्या जो इंसानों को काट लेते हैं, जो हमें काट लेते हैं। ये तो मेंटालिटी है। Exactly. Being into the same field, I have faced these questions where I have a clear answer to this. सर अगर आपको काट भी लेते हैं, आपके पास जगह है जहां आप जाके इंजेक्शंस लगा सकते हो, आप एमसीपी को इन्फॉर्म कर सकते हो, आप अगर ओनर का है तो हमारे पास लॉज हैं जहां सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, आई डू नॉट एग्जैक्टली रिमेम्बर, बट कोर्ट ने डायरेक्शंस दी थी पर टीथ 10,000 आपको मिलेगा कॉम्पेंसेशन, आपको और क्या चाहिए। बट यही चीज अगर आप किसी कुत्ते को मारते हो तो वो कहाँ जाएगा। तो उसके लिए अगर somebody has taken a stand to fight for that dog जो उसकी ओनर है, एंड नेक्स्ट कमिंग अप अबाउट मी कि मैं उसमें आई, तो उसमें हमारा फॉल्ट नहीं है। दिस हैपेंड एंड दिस वाज माय ड्यूटी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस वाज माय चॉइस टू टेक द केस प्रो, I haven't charged a single penny. तो ये मेरी चॉइस है। इफ यू आर वॉचिंग समथिंग हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ द आईज जहां डॉग ने किसी को बाइट कर लिया है, यू आर एडुकेटेड इनफ, गो एंड इन्फॉर्म दैट पर्सन कि आप उसको मारने के बजाय ये स्टेप्स लो। सो देयर इज अ वेरी क्लियर आंसर। गूगल इज एवरीथिंग फॉर एवरीवन राइट नाउ, एवरीवन इज हैविंग अ फोन। अगर कुछ होता है, इंस्टेड ऑफ हिटिंग अ डॉग और एनिमल, गो एंड सर्च ऑन गूगल, ग्रैब सम नॉलेज एंड देन टेक अ डिसीजन वाइजली कि करना क्या है। So, what does this victory mean for animal rights in India? Like, do you think it sets a precedent for future cases? See, in our field, we call it a landmark case. And to be honest, as soon as I just said this word right now, I had a goosebump. We know what landmark case means to us. Landmark case होना अपने में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो अभी तक हुआ नहीं था वो हुआ है, उसको कहते हैं लैंडमार्क। इसका मतलब है आगे जो होगा, अब इस को देखते हुए या तो इतना होगा या इससे ज्यादा। तो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द फ्यूचर नाउ फॉर ऑल द फॉर ऑल द पेट पेरेंट्स, फॉर ऑल द फीडर्स की शुरुआत तो हो चुकी है। So, like, इस केस को मतलब ये सडनली पब्लिक आई में आ चुका है, which is a good message, I think, because I think this is the power of social media. ये एक हाइप पूरा क्रिएट कर चुका है, लोगों अब 10 बार सोचेंगे कुछ भी गलत करने से पहले। Yes, Roger. And what's your favorite movie or TV show? Look, I'm not fond of these things, but हाँ मुझे मेरे प्रोफेशन से रिलेटेड चीजें पसंद आती है, जैसे डेली क्राइम्स है। मैं थोड़ा काइंड ऑफ मूवीज, उरी, विक्रम बत्रा, शेरशाह, मैं ऐसी मूवीज पसंद करती हूँ। तो देयर इज नो अप एंड डाउन कि मुझे कौन सी ज्यादा पसंद है, बट मेरा यही टेस्ट है। ऐसी आएगी तो मैं देखूंगी, अदरवाइज मैं देखती नहीं। लाइक बॉलीवुड काइंड ऑफ टेस्ट नहीं, काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्री और रियल लाइफ। एग्जैक्टली बायोपिक हो, डॉक्यूमेंट्री हो, मुझे वो पसंद आती है जो थोड़े रियल सिनेरियोस को करे। लॉ रिलेटेड जितनी भी सीरीज आती हैं वो मैं जरूर देखती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत मजा आता है कि कुछ दिखेगा मेरे जैसा जो हम कोर्ट में देखते हैं। करता है एग्जैक्टली। ये सबको अच्छा लगता है देखना कि वो जो प्रोफेशन में है, वो जो सामने वाले जो वो किरदार निभाता है तो कितना जस्टिफाई कर पाता है। आई एब्सोल्युटली एग्री विद यू। What's your guilty pleasure when you are have your downtime?
बेसिकली यू आर ट्राइंग टू आस्क कि मैं किससे ज्यादा बेटर फील करती हूँ उस टाइम पे, Yeah, किस चीज से? माई गर्ल, doubt. अनडाउटेडली माई गर्ल। वो मेरे सबसे बुरे फेज में भी मेरे साथ रही है। आई हैव सीन द मोस्ट वर्स्ट फेज ऑफ माई सेल्फ, Um, जहाँ उसने स्टेप बैक नहीं किया, वो मेरे साथ ही थी एवरी Yes, सिंगल first. मोमेंट। और आई वुड से इफ शी इज देयर विद मी, आई एम राइट नाउ सिटिंग इन फ्रंट ऑफ, बिकॉज बैड फेज सबका आता है, और उस बैड फेज में वो थी तो आज मैं हूँ। Okay, and where do you see yourself and your practice in the next 10 years? It's a typical interview questions, but Yeah. yes, I would like to see myself the same inner me, Mhm. but a growth and success in my profession. मैं अपने आप को grounded ही रखूंगी 10 Mhm. साल 20 साल 50 साल जितना भी मैं अपना काम करूंगी, मैं ग्राउंडेड इसी तरह रहना चाहती हूँ। मैं जब भी सुबह उठती हूँ हमेशा ये बोलती हूँ कि काम मेरे को भर भर के आए, बट मैं ऐसी ही रहूं जैसी मैं हूँ। आई वांट टू बी द Amazing. वन वे आई एम राइट नाउ, बिकॉज आई लव माई सेल्फ जैसी मैं हूँ। मुझे Mhm. रिग्रेट नहीं है किसी चीज का कि मैंने मुझसे ये गलत हुआ है। मैं ये कभी लाना भी नहीं चाहती अपनी लाइफ। मुझे पता है वरना मैं सो नहीं पाऊंगी अगर मेरे को कभी ऐसा होगा तो। Amazing. It's excellent podcast रहा हमारा entire journey. आपका dedication, आपका honesty, आपका loyalty about your work. It's an inspiring thing. Entire listeners, क्योंकि हमारा listeners, हमारा audience जो है वो all the age groups है, उनके लिए something to inspire them. And वो ये है ना कि वो जोश नहीं छोड़ना है. ओके, सो एवरीबडी जिस भी एज के हो, चाहे छोटे से बच्चे हो आप, चाहे मिड एज हो, चाहे सीनियर सिटीजन हो, आप कभी अपने अंदर की आत्मा, देखो हर कोई खुद को सबसे ज्यादा जानता है, अपना वीकेस्ट अपना स्ट्रॉन्गेस्ट, अपना सही अपना गलत, खुद के लिए डिसीजन लेना सीखो। वंस यू विल रियलाइज कि आप किस स्टेप पे आके हाँ या ना बोलोगे, उस दिन आप अपने लिए सबसे बेस्ट काम करोगे। दुनिया आपको मैनिपुलेट कर सकती है, समझा सकती है, लेकिन आप करो वही जो आपको सही लगता है, क्योंकि इनर पीस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एवरी ह्यूमन पर्सन। अपनी अंदर की स्ट्रेंथ को रखना बहुत जरूरी है, और वही आपको हेल्प करता है हाँ या ना बोलने में। सिंगल यस सिंगल नो ऑफ अ पर्सन कैन चेंज योर एंटायर लाइफ। वो हिम्मत लाओ। अगर आपको दुनिया में चेंज देखना है, आपको चेंज खुद से लाना पड़ेगा। इट्स इम्पोर्टेंट। आपको Amazing. देखा देखी दूसरे करेंगे तो दुनिया करेगी। Amazing, amazing, amazing. What a round. What a round. How did you feel about Let's Softly? How the connection we built out, and how about this platform? Something for Let's Softly and just wrap it up. Let's Off Leash, I would say that it's an amazing platform जो मैंने feel किया, not on this screen but on calls as well. The way we connected, the way we get in touch. Not, I'm happy, to be honest, I'm happy क्योंकि आपने सिर्फ कोको के अराउंड ही पूरा पॉडकास्ट नहीं रखा। आपने पूरी जर्नी एक लॉयर की भी रखी, ताकि अगर दुनिया में जितने लॉयर्स हैं वो समझ सके, वो देख सके, वो सीख सके, अगर जूनियर्स हैं, इंटर्न्स हैं, कि स्ट्रगल्स क्या होते हैं, सक्सेस क्या होता है। आप मेहनत करोगे तो आप भी इस स्टेज पे बैठोगे जब दुनिया में कोई बैठा आपको देख के पॉडकास्ट आपका लेगा, जैसे लेट्स ऑफ लीश ने किया। सो आपने लॉयर की जर्नी को पूरा दिखाया है, आपने कोको की लाइफ को दिखाया, आपने लोगों से कनेक्ट किया अपने कॉन्वर्सेशंस में, आपने यूट्यूबर्स का नाम लिया, आपने उनकी बातें उठाई, आपने प्रोफेशन से कनेक्ट किया, आपने हमारे फील्ड के कितने लेवल्स होते हैं, क्या क्या, वो सब कुछ आपने दुनिया को दिखाया। एक ग्राउंड रियलिटी आपने इस पूरे पॉडकास्ट में दिखाया। आई एम वेरी हैप्पी। मतलब आपने सिर्फ एक ही टॉपिक को रख के स्ट्रेच नहीं किया। आई एम हैप्पी कि हमने बहुत सारी बातों पे कॉन्वर्सेशंस को खींचा, और बहुत ही प्यारी कॉन्वर्सेशन को हमने रखा एक दूसरे के साथ। थैंक यू सो मच। ये पूरा कॉन्वर्सेशन ड्रैग करने का एक ही मोटिव था कि लोग 2 दिन 10 दिन का कोको का ये जर्नी से आपको याद ना रहे। आपका जो जर्नी है वो जर्नी बहुत इम्पोर्टेंट है। लोगों को वो उससे इंस्पायर होना चाहिए, ना ही कि उनको दिमाग बैक ऑफ द माइंड ये आए कि इनको बहुत ज्यादा फेम मिल रही है, इनको बहुत ज्यादा फॉलोअर्स गेन हो रहा है। आपको उससे कोई मतलब नहीं है। एंड आई कैन फील दैट, आई कैन सी दैट कि आपको काम करते जाना है, और आपका जो माइंडसेट है वो ऑलरेडी क्लियर है कि आई वांटेड टू डू समथिंग फॉर, एंड ऑफ कोर्स मार्केटिंग इज नॉट अलाउड इन योर प्रोफेशन। सो आप इतना डाउनग्रेडेड हो आज की डेट में, जो काम मांगने से शर्माता नहीं है, विच इज द बेस्ट पार्ट।
जो बिग स्टार्स भी बोलते हैं काम मांगने से शर्माओ मत, इट्स समथिंग यू शुड आस्क फॉर इट, वो अर्ज आपके अंदर होना चाहिए। आई डू नॉट फील कि इससे कोई इज्जत गिर जाएगी या आपका सम्मान गिर जाएगा, नेवर। So thank you so much for all this effort and time, and I will remember this journey. It's an emotion. It's a pact of emotion. Making me a part of this. Thank you so much for Thank you. bringing out my feelings and emotions and the reality of our profession, the journey of me in this case, this entire case, and the different cases as well. The journey which you asked me about, which is a never-ending journey in my life, which I cannot forget. That is something which I shared at your podcast. Thank you so much for everything. Thank you so much, Rhythm, for joining us today and sharing your incredible journey and insight. Your work is truly inspiring, and I know our listeners have gained so much from this. If you enjoyed this show, if you enjoyed this episode, do not forget to like, share, and subscribe. Let's Softly on YouTube and all other social media platforms. And if you want to stay updated with us, do not forget to hit the bell icon. It's an absolute honor to talk to her. One request: if you see cruelty, if you see brutality, it's animal or it's human, raise your voice. Let's Softly wrapping up from Kasturi Jha.